Welcome back student. Next part of the chemical reaction and equations. तो पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह से करते हैं ये डिस्कस किया था. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शंस हमारे पास पॉसिबल है. बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन: combination or addition reactions, then decomposition reaction, then displacement reaction, then double displacement reaction, and then oxidation reduction reaction, which is also called redox reaction. In case of decomposition reactions, we can divide it into different parts, that is thermal decomposition, then catalytic decomposition, then we have photochemical decomposition, and then electrolytic decomposition. Now, apart from these 5 types of reaction, there are certain other reactions also. जैसे other reactions में other types of reactions, we have polymerization reaction, precipitation reaction, then exothermic and endothermic reaction, these are the types of reaction. Polymerization reaction, there are different units which are called monomers, and monomers combine to form polymer. For example, we use a compound polythene. Polythene is the polymer of ethene. Different molecules of ethene join to form polythene. So that is polymerization reaction. Precipitation reaction, पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. When something is formed as a precipitate, then such type of reaction is called precipitation reaction. Now on the basis of heat, if energy is liberated in the form of heat energy, this is called exothermic reaction, and when heat energy is absorbed, then it is called endothermic reactions. But we have to basically discuss this 5 type of reaction. तो first we discuss combination or addition reaction. इसको शुरू करते हैं. Combination or addition reaction, as the name suggests, combination additions मतलब क्या हुआ? Actually here what happened? Number of reactants are more than one reactants combined to form a single product. Reactant का नंबर एक से ज्यादा होता है, but product formed is always one. For example, we can take example magnesium को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, then magnesium oxide is formed. This is combination reactions. Number of reactant are 2, but number of product is only 1. Then C plus O2, that form carbon dioxide, again product is 1. Then hydrogen and oxygen, H2, 2H2 plus O2 form 2H2O. So such type of reactions are called combination or addition reaction, जहां पे reactant का नंबर एक से ज्यादा है, but product form is always 1. लेकिन product जो होगा हमेशा एक ही बनेगा. Now the next is decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite to the addition or combination reaction. What happens in case of decomposition reaction? Reactant is only one, and the single reactant breaks down during a chemical process to form 2 or more product. तो reactant opposite हो गया. यहाँ पे क्या था? Reactant का नंबर एक से ज्यादा था, product is only one. But in case of decomposition reaction, reactant is only one, but the product is always more than one. So next type of reaction, that is
decomposition reaction. Look here, decomposition reaction. B part of reaction, this is decomposition reaction. Decomposition reaction. Look here. We have a compound. Imagine we have a compound. This is a compound. जिसको कुछ नाम देते हैं. That is A2B. A2B. Imagine करो A2B means this is A atom, this is also A atom, and this is B atom. A2B. अब in case of decomposition reaction, what happens? It decomposes to form more than one product. This is A2 and this is B. तो in this way reactant एक ही है लेकिन प्रोडक्ट का नंबर एक से ज्यादा होगा. Now depending upon the factors of decomposition किस रीजन से हो रही है, there are 4 types of decomposition reaction. Thermal decomposition. If a compound decomposes by heat alone, केवल गर्म करने पर कोई compound breakdown हो जा रहा है, now this is called decomposition reaction. Sorry, thermal decomposition reaction. But sometimes we have to use certain substances which are called catalyst. Catalysts are those substances which can change the rate of reaction without themselves undergoing any change, and such type of reactions are called catalytic decomposition reaction. अगर breakdown करने के लिए हमें किसी catalyst को use करना पड़ रहा है, catalyst के साथ उसको गर्म करते हैं तब breakdown हो रहा है. Now this is catalytic decomposition reaction. Now sometime what happens? A compound breaks down by the action of sunlight. आपने उसको ओपन में रख दिया, सनलाइट में कंपाउंड ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया. दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. एंड समटाइम्स वी हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट. वाटर को आपको वापस ब्रेक डाउन करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे एंड नाउ इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इन दिस वे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. First is thermal decomposition. Thermal decomposition. Look here. Thermal decomposition. Compound breaks down by the action of heat alone. केवल हमने इसको गर्म किया और ये ब्रेक डाउन हो गया. जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया. For making reaction more informative, we can write the physical state of the reactants and the product. This is in the form of solid. For solid we write S. गर्म करने के बाद this is calcium oxide, this is also solid, and CO2 gas. तो केवल गर्म करने के ब्रेकडाउन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो such type of reaction is called thermal decomposition reaction. Now the next one is catalytic decomposition. कैटालिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें हमें कुछ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है. कैटलिस्ट आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज द रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज. जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस दे स्पीड अप द रिएक्शन. रिएक्शन के रेट को काफी स्पीड अप कर देंगे. बट इन सम टाइम देयर आर नेगेटिव कैटलिस्ट आल्सो. बट हियर वी हैव टू स्टडी ओनली पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देते हैं. रिएक्शन काफी जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल वी हैव द रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3. पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2. दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर द मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस. नाउ बट अगर हम सिंपली इसको केवल गर्म करते रहे, द रिएक्शन विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी. ऑलमोस्ट 630 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जाकर के ब्रेक डाउन होगा. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. A lot of energy is consumed, a lot of time is consumed. But अगर हम ऐसा नहीं करके इसमें हम इसको थोड़ा सा 2KClO3 और इसमें हम थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिक्स कर दें,
नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मच लोअर हीट, 100, 150, 200 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, काफी कम गर्म करने पे ये डेकम्पोजिशन होगी। नाउ हियर MnO2, this MnO2 is called catalyst. This MnO2 is called catalyst. Now this is called catalyst. क्यों? बिकॉज इसकी प्रेजेंस की वजह से रिएक्शन जो थी, रिएक्शन की रेट जो थी वो स्पीड अप हो गई। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक डेकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डेकम्पोजिशन रिएक्शन, that is photochemical decomposition। टेक सम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और आप इसको सनलाइट में रख देंगे, ये अपने आप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल। 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, 2Ag प्लस Br2। रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, बस इसे सनलाइट में आने दो। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डेकम्पोजिशन। केवल सनलाइट पर देने से रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई। इवन जैसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2। माइंडेड H2O इज वाटर बट H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगेन अगर इसको भी हम सनलाइट में हम रख देते हैं, इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। So this is also photochemical reaction. Now the last type of decomposition reaction, that is electrolytic decomposition. If we have to pass electric current to decompose the substances, then it is called electrolytic decomposition. So third type of decomposition reaction, this is electrolytic decomposition. Sorry, fourth type of decomposition reaction, electrolytic decomposition। ओके, वाटर है, वाटर को आपको वापस ब्रेक डाउन करना है। आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप करेंगे कैसे? आप देखो, वी हैव स्पेशली डिजाइन्ड वेसल्स व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। हमारे पास एक स्पेशली डिजाइन वेसल्स है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स। and these electrodes are connected to cell positive and negative terminal। This is positive, this is negative. Positive is called what? Anode, and this is cathode। इसके ऊपर हमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखते हैं। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर फिर वाटर, वाटर इसके ऊपर इसके अंदर डाला। नाउ वाटर के साथ थोड़ा सा एसिड मिक्स करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप मिक्स करेंगे बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। लुक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, H2O क्या होगा? 2H प्लस O2 माइनस। ये किस पे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो किस पे जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा? फिर निगेटिव चार्ज पे, यानी कि किस पे जाएगा? ये कैथोड पे। तो ये कहां जाएगा? एट कैथोड।
और ये निगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे, दैट इज एट एनोड. ओके, कैथोड इज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज. नाउ व्हाट हैपन, जिसमें आप देखेंगे जो वाटर का जो लेवल है वो फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा. वाटर का जो लेवल है इसमें धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा. ओके, ये वाटर का लेवल यहां पे नीचे आ गया, जो पूरा भरा हुआ था नीचे आ गया. अभी हाइड्रोजन गैस यहां एक्यूमुलेट होगी एंड हियर आल्सो वाटर का लेवल यहां नीचे आएगा. ऑक्सीजन, दोनों के वॉल्यूम में आप देखिए, दोनों के वॉल्यूम में डबल का डिफरेंस है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल वाटर के डिसोसिएशन से 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन बनेंगे. यानी अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो हाइड्रोजन क्या है, 2 टाइम्स. तो ऑब्वियसली कैथोड पे जो डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इसमें वाटर का लेवल ज्यादा नीचे आएगा, इसमें वाटर का लेवल कम नीचे आएगा. दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. वाटर धीरे धीरे डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह पे गैसेज, जैसे जैसे गैस यहाँ पे बनेगी, गैस नीचे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगी और वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा और वाटर इसमें कंज्यूम भी होता जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट decomposition reaction. In next lecture we will discuss about the other forms of reaction. Thank you.